Hello students, welcome to our online lecture. Now this is our fourth lecture of aldehyde, ketones and carboxylic acid. In last lecture, we have to discuss the preparation of aldehydes, ketones and carboxylic acid. Carboxylic acids are prepared by using nitriles, amide. Again, from alkene also we have to prepare carboxylic acid. By using Grignard reagent, we can prepare carboxylic acid. If we take ester as a starting material, then it undergoes acid hydrolysis or alkaline hydrolysis, then also we get carboxylic acid. Okay, so in last lecture, we have seen all these terms. Now, today we are going to start, or today we are going to discuss physical properties of aldehydes, ketones, and carboxylic acid. Physical properties means boiling point, solubility, polarity, interactions, forces of attraction. All these are the physical properties. And on the basis of interactions, or we can say on the basis of intermolecular forces of attraction in between molecule, these physical properties are depends. Okay. So on the basis of intermolecular forces of attraction or intermolecular bond strength, the physical properties of aldehydes, ketones, and carboxylic acids are depend. Understood? Now, in case of aldehyde, the lower member of aldehyde, which one is the lower member of aldehyde? Formaldehyde is the first member, right? So formaldehyde is a gas at room temperature and which is having a very irritating odor. Second molecule of aldehyde is acetaldehyde, which is extremely volatile in nature and colorless. इसको color नहीं है, हाँ, which is colorless. और जैसे जैसे फिर हम लोग एल्डिहाइड्स के नंबर्स बढ़ाते जाएंगे, मतलब प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटिलल्डिहाइड, लाइक दैट, जैसे जैसे कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे तो एल्डिहाइड की चेन भी बढ़ती जाएगी. सो द हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स हैव अ प्लेजेंट स्मेल, हैव अ प्लेजेंट ओडर. ओके. Acetone, the first member of ketone, the first member of ketone is acetone, which is liquid at room temperature and again has a pleasant odor. But most of the higher ketones having a bland odor. If we increase the homologous series of aldehydes and homologous series of ketones, then the boiling point differ. Okay, boiling point में क्या आएंगे? Changes आएंगे. कैसे आते? Now see, if in case of aldehyde and in case of ketone, oxygen is present, right? So carbonyl group is present now. So what is the formula of carbonyl group? C double bond O, right? C double bond O is the formula for C double bond O is the formula for ketone. Carbonyl group, right? C double bond O. So C double bond O में one oxygen atom है और one carbonyl group, one carbon atom है. So दोनों की इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन खींचेगा? इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन खुद की तरफ खींचेगा. सो इट अक्वायर डेल नेगेटिव चार्ज and carbon acquire del positive charge. That means here dipole formation takes place because positively charged carbon atom is there and negatively charged oxygen atom is there, right? So here oxygen electrons खुद की तरफ खींच रहे हैं, right? Oxygen electrons खुद की तरफ खींचेगा. So because of that here dipole formation takes place. वहाँ पे क्या तैयार हो रहा है? Dipole तैयार हो रहा है. So in that, in aldehyde and ketone, dipole attraction is present. Intermolecular bond strength क्या रहेगी यहाँ पे? Dipole attraction is present in aldehyde and ketone. Okay, and if the gaseous molecules, then the van der Waals forces of attraction present रहते हैं. Now if we compare, so जैसे जिस हिसाब का attraction रहेगा, intermolecular forces रहेगा, उस हिसाब से boiling point differ करता है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफर होता है? जिस हिसाब से वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ
Now if we compare the alcohol with aldehydes and ketone, the boiling point of alcohol is more. Boiling point of alcohol is greater. Why it is greater? Because in alcohol molecule intermolecular hydrogen bonding is present. हम लोगों ने आप लोगों ने अल्कोहल के चैप्टर में देखा होगा कि वहां पे जैसे वाटर की टेंडेंसी रहती है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. सिमिलरली इन केस ऑफ अल्कोहल, वन ऑक्सीजन एटम फ्रॉम वन अल्कोहल मॉलिक्यूल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अदर अल्कोहल मॉलिक्यूल. ठीक है, मतलब वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या जरूरी रहता है कि ऑक्सीजन मतलब और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो होना ही चाहिए जिसके पास लोन पेयर है, और हाइड्रोजन एटम भी होना चाहिए. सो बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ अल्कोहल. और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी उस हिसाब से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होते जाएगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगेगी बॉइल करने के लिए, बिकॉज वो कंबाइंड हो गए ना, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाएगा. So because of that, it require more energy, so the boiling point is increases. Okay, so in case of alcohol, intermolecular bond strength depends on the hydrogen bonding. So that's why alcohols having a more boiling point. और अगर हम लोग ट्रेंड देखते हैं कि which force of attraction or which intermolecular force of attraction is greater, so as you can see on the screen, hydrogen bonding intermolecular strength में hydrogen bonding is greater than the dipole-dipole attraction, which is greater than the van der Waals forces of attraction. Okay, so इसमें से जो ज्यादा जिसमें रहेगा उस हिसाब से boiling point differ करेगा. So on the basis of that, alcohol having a hydrogen bonding, so alcohol का boiling point सबसे ज्यादा रहेगा than aldehyde, और aldehydes और ketone में dipole-dipole attraction present है because of carbonyl group. So in that aldehyde and ketone का boiling point alcohol से कम रहेगा. And if we compare alkane, तो alkane में कोई effect नहीं है, van der Waals forces of attraction is there, but dipole-dipole attraction भी नहीं है और hydrogen bonding भी नहीं है, क्योंकि alkane में रहता ही क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन. तो वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते और डायपोल तो तैयार हो ही नहीं सकता. सो दैट मींस वहां पे ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है. सो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द aldehydes and ketone. So as you can see on the screen, here methanol, ethanol, propanol, butanol, pentanol and hexanol. ठीक है, so boiling point दिया हो यहाँ पे 65, 78, 97, 118. That means from top to bottom boiling point is increases. कैसे? Because of here कार्बन का चेन भी इंक्रीज हो रहा है ना. हेक्सेन के कंपैरिजन में मिथेनॉल सबसे छोटा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा, छोटा ही होगा हेक्सेनॉल के कंपैरिजन में. सिमिलरली इन केस ऑफ अल्डिहाइड, मिथेनॉल दैट मींस formaldehyde, ethanol that means acetaldehyde, propanol, butanol, pentanol, hexanol. So again boiling point increases from top to bottom. Okay, similarly in case of ketone, acetone that means 2-propanone, 2-butanone, 2-pentanone, 2-hexanone, again boiling point is increases from top to bottom. जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे, नॉट ब्रांचिंग, जैसे जैसे कार्बन आइटम चेन में इंक्रीज होते जाएंगे उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट increased होते जाएगा. That means we can say that in case of aldehyde and ketone, the boiling point from first member of aldehyde to the higher member of aldehyde is increases. Similarly in ketone. Okay, so this is the boiling point of aldehydes and ketone. Now, in case of aldehyde and ketone, as I told you earlier, in case of aldehyde and ketone, the carbonyl group is present, and the nature of this carbonyl group is polar. How it is polar? Because of electronegativity of oxygen atom is more. Electronegativity of this oxygen atom is more. And carbon की electronegativity छोटी रहती है, मतलब कम रहती है comparatively ऑक्सीजन से. So ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कौन खींचेगा, ऑक्सीजन की तरफ. So it acquire negative charge और कार्बन की positive charge. So it forms dipole, positive charge and positively charged, negatively charged oxygen atom. Okay, so because of that, this bond is become more polar in nature. Okay, so aldehydes and ketones are polar compounds because of the polarity of carbonyl group. Due to the polarity of this carbonyl group, these aldehydes and ketone molecules are polar in nature. So the polarization of CO group creates a dipole-dipole attraction between the molecule of aldehydes and ketone,
which is resulting in higher boiling points than the non-polar of alkene and ether. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, because of presence of dipole-dipole attraction, the boiling point of aldehydes and ketones is more than the alkene, but alcohol से वो कम होता है. ठीक है, क्यों कम होता है? Because alcohol having a hydrogen bonding, and the trend of force of attraction is hydrogen bonding का attraction सबसे ज्यादा रहेगा than dipole-dipole attraction, which is greater than the van der Waals forces of attraction. देखो यहाँ पे aldehydes and ketones having a lower boiling point than the alcohol because dipole-dipole attraction are not as strong as the interaction due to hydrogen bonding. ये अभी हम लोगों ने देखा है. ठीक है, so the lower aldehydes and ketones are soluble in water. Acetone formaldehyde and acetaldehyde are miscible in water. अब ये solubility किस पे डिफर करती है? See, the solubility of aldehydes and ketones is due to the presence of carbonyl group, because carbonyl group involves in hydrogen bonding with water molecule. Now you can see here, as you can see here, what is this? This is water molecule HOH, right? और ये कौन है? कार्बोनिल ग्रुप. एल्डिहाइड का रहेगा या तो फिर कीटोन का रहेगा. तो ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर रहती है, 2 लोन पेयर. इधर भी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन दिख गया तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, राइट? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, वाटर के हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, right? So because of that formation of hydrogen bonding, the lower member of aldehydes and the lower member of ketones are soluble in water. इसको हम लोग बोलते हैं are miscible in water. ठीक है, so you should remember that because of formation of a hydrogen bonding with water molecule, किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन का कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन forms a hydrogen bonding with the hydrogen atom from water molecule, that is called as the hydrogen bonding. And due to this hydrogen bonding, the lower member of aldehydes and the lower member of ketones are miscible in water. Okay, now as the molecular mass of these aldehydes and ketones increases, okay, the molecular mass of aldehydes and ketones मतलब जैसे कार्बन एटम चेन में बढ़ते जाते हैं, जैसे प्रोपेन एल्डिहाइड से ब्यूटिल एल्डिहाइड, ब्यूटिल एल्डिहाइड से वैलेर एल्डिहाइड, दैट मींस 5 कार्बन हो गए. ठीक है, सो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो नॉन पोलर ग्रुप वहां पे इंक्रीज हो रहा है ना, because alkyl, methyl, ethyl, propyl, ये जितने भी ग्रुप्स है, all these are the non-polar. ठीक है, तो जैसे जैसे non-polar ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे चेन में, तो water heating character increased होगा, and water heating character is nothing but a hydrophobic nature of that non-polar alkyl groups. Because of that increasing in nature, so that's why the solubility in water is decreases. फिर जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे सोलुबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सो सी हियर सोलुबिलिटी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की सोलुबिलिटी, वो अल्डिहाइड में भी लागू होता है, अल्कोहल में भी लागू होता है और कीटोन में भी लागू होता है. क्या? लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड लोअर मेंबर्स ऑफ कीटोन्स आर मिसिबल विद वाटर टू बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल. बट जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा, मोलर मास कैसे इंक्रीज होगा? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स. एक एक अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मोलर मास भी इंक्रीज होगा. एंड नॉन पोलर जो नेचर अल्काइल ग्रुप का है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड ड्यू टू दिस वाटर मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और जो भी अल्कोहल रहेगा वो इनसोल्युबल हो जाएगा. ठीक है, नाउ सी हियर मिथेनॉल. फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल इज मिथेनॉल. क्या दिख रहा है यहाँ पे? मिथेनॉल इज मिसिबल इन वाटर. अब मिथेनॉल मतलब दिस इज फॉर्मल्डेहाइड, ये भी मिसिबल है. इथेनॉल मिसिबल है. इथेनॉल दैट मींस एसिटाल्डिहाइड मिसिबल है. प्रोपेनॉल मिसिबल है. प्रोपेनॉल दैट मींस थर्ड मेंबर ऑफ अल्डिहाइड, वो स्लाइटली सोल्युबल है क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप बढ़ गया मतलब स्लाइटली सोल्युबल है, कंप्लीट सोल्युबल नहीं है. तो प्रोपेनॉल दैट मींस एसीटोन इज मिसिबल. ब्यूटेन 1-ऑल, इसकी सोल्युबिलिटी ओनली 1.1 है, मतलब पूरा सोल्युबल नहीं हो रहा. ब्यूटेनॉल इट इज वेरी स्लाइटली सोल्युबल. ब्यूटेनॉल मतलब ब्यूटिल एल्डिहाइड, वेरी स्लाइटली सोल्युबल. टू ब्यूटेनॉल स्लाइटली सोल्युबल. अब जहाँ पे स्लाइटली सोल्युबल लिखा है मतलब सोल्युबल कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा सोल्युबल हुआ है.
ठीक है। पेंटेनॉल का 0.3 मोल पर लीटर सोलिबिलिटी, हेक्सानॉल का 0.058 मोल पर लीटर सोलिबिलिटी है। और इधर अल्डिहाइड में तो पेंटेनॉल पूरा इंसोल्यूबल है, हेक्सानॉल भी पूरा इंसोल्यूबल है। टू पेंटेनॉल कंप्लीट insoluble है, टू हेक्सानॉल कंप्लीट insoluble है। That means we can say that from top to bottom, number of carbon atoms increases in a chain. So that's why the solubility is decreases. Okay, from top to bottom, जैसे जैसे molar mass increase हो रहा है, number of carbon atoms increase हो रहे हैं, the solubility of these compounds, aldehyde रहा या ketone रहो या alcohol रहो, the solubility of these compounds decreases. Understood? This is called as the solubility of aldehydes and ketones. So yeah, as you can see here, the hydrogen bonding formation कैसे होता है? Water molecules can interact with the hydrogen bond with the non-bonding pair of carboxylic group. Okay, so oxygen atom क्या करेगा? Aldehyde और ketones का have small carbon atom chain and it is water soluble. So यहाँ पे ये कार्बन ग्रुप है, ये हाइड्रोजन एटम का वाटर है, इसने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर दी and we get the soluble compound. Okay. Now the physical so here यहाँ पे भी थोड़ा 3D डायग्राम के फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो किया है। अल्डिहाइड और वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है अपना C डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड, और ये वाटर है, ये भी वाटर है, इसे सबको HOH। यहाँ पे क्या देखना है? दिस इज अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, और ये HOH, हियर आल्सो HOH। ये ऑक्सीजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एटम हैविंग ए 2 लोन पेयर। ओके, सो कीटोन, सेम कीटोन में भी कीटोन आल्सो फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। सो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कीटोन एंड एल्डिहाइड के लोअर मेंबर्स आर सोल्यूबल इन वाटर। सो बॉइलिंग पॉइंट का चार्ट हम लोगों ने देखा है, ठीक है। Now the physical state and boiling points of solubilities of carboxylic acid. Solubility of carboxylic acid. So वहाँ पे भी same ही है. In case of carboxylic acid, the lower aliphatic carboxylic acid up to 9 carbon atoms are colorless liquid with irritating odor. The higher homologous series of carboxylic acids are colorless, odorless, wax-like substance. मतलब जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसकी वो सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होते जाएंगे एंड इट बिकम लाइक अ वैक्स। ओके, और अपने को पता है कि सॉलिड बन रहा है मतलब उसकी वोलेटाइल नेचर कम हो जाएगा। And the boiling point of carboxylic acid, it is higher than the boiling point of alcohol, aldehydes and ketones. Okay, so see, aliphatic carboxylic acid, some 9 carbon atoms are colorless liquid at room temperature which present odor. The higher member of acids are wax-like solids that are practically odorless due to their low volatility. Okay, उनको odor भी नहीं रहता है। Now, the carboxylic acid having a stronger boiling point than alcohol, aldehyde, ketones, alkenes. Why? What is the reason? सबसे ज़्यादा boiling point रहता है carboxylic acid का। क्यों? So as you can see here, these if 2 carboxylic groups are present or carboxylic acids are present, then it form a dimer. How it form a dimer? So जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O, और इसका OH ग्रुप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप ऐसे शो करते हैं ना, R C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है। तो ये हो गया इसका OH। सिमिलरली दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मींस एसिटिक एसिड हियर, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। नाउ जो डबल बॉन्ड वाला कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन एटम है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, दैट मींस कंबाइन होता है हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द हाइड्रोक्सी ग्रुप फ्रॉम अदर एसिड मॉलिक्यूल। सिमिलरली दूसरे एसिड मॉलिक्यूल का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है मतलब डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये हाइड्रोजन किसका है? ये फर्स्ट वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ये फर्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सेकंड वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
जैसे कंबाइन हो रहे, दैट इज कॉल्ड एज द डाइमर, that is called as the dimer. इसको बोलते हैं डायमर. टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर, that is called as the dimer. अगर 3 मॉलिक्यूल होंगे तो ट्राइमर, 4 मॉलिक्यूल होंगे टेट्रामर, और या तो फिर पॉलीमर. Okay, so carboxylic acids have having a stronger hydrogen bonding between the molecules. एक दूसरे के बीच में वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हुई है. Therefore, carboxylic acid having a higher boiling points compared to the other substances uh, like alcohol, aldehydes, ketones, like that. Okay, so because of that formation of this dimer, the molar mass of this molecule is become double. दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे तो एक का जितना मोलर मास रहेगा उसके डबल हो जाएगा पूरे डायमर में. तो जितना मोलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होने वाला होगा ना, क्योंकि इतने बड़े मॉलिक्यूल को, डायमर तैयार हुआ होती मॉलिक्यूल को हीट करने के लिए, बॉईल करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना ही होना है. ओके, so here also हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डायमर फॉर्मेशन, जैसे आप लोग 3D डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन एटम है, ये कार्बन OH का है, अल्काइल ग्रुप, और ये C डबल बॉन्ड O है, जैसे हथकड़ी जैसे लग रहा है ना, डबल बॉन्ड. यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर के साथ उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म की है. किसके साथ? हाइड्रोजन ऑफ दूसरे सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ carboxylic group. This is the second molecule of carboxylic group. This is the first molecule of carboxylic group. So the presence of this dimer increases the strength of van der Waals dispersion forces, resulting in the higher boiling point of carboxylic acid. Okay. So अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि why the carboxylic acid having a higher boiling point than other functional groups, so you should write that in case of carboxylic group, the dimer formation takes place because of the hydrogen bonding in between oxygen and hydrogen atom of the same molecule. So that's why the strength of this carboxylic group is increases, so it requires the more energy. So that's why it is having a higher boiling point. Okay. So the reactivity of, afterwards the next topic is reactivity of aldehydes and ketones. Aldehydes और ketones की reactivity अभी हम लोग स्टडी करेंगे. This is also very important topic. And after that हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे कार्बन ग्रुप्स की. ठीक है. सो द रिएक्टिविटी ऑफ aldehydes and ketones, the chemical reactions of aldehyde and ketones depends on the reactivity of aldehydes and ketones. ठीक है. कैसे कि which one is the more reactive, whether aldehyde is more reactive or whether ketone is more reactive, इस पे डिपेंड होगा ना chemical reactions of aldehyde and ketones की. उस हिसाब से ही कोई एक आधा मॉलिक्यूल या एक आधा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अपने aldehyde और ketone पे. Now in aldehyde and ketone, one group is present and this group is called as the carbonyl group. ठीक है. तो ये इसका जैसे नेचर होगा उस हिसाब से वहाँ पे रिएक्टिविटी रहेगी. So the main reaction of carbonyl groups are nucleophilic addition to the carbon oxygen double bond. क्यों? Because this carbon atom acquire a positive charge, oxygen atom acquire a negative charge. So because of more electronegative oxygen atom is attached with the carbon atom, so electrons पूरे के पूरे जाएंगे इधर, electrons की तरफ खींचेगा ऑक्सीजन, तो कार्बन become more and more positive ना, so it become electrophilic in nature. और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे अगर कोई नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो इजीली अटैक ऑन दिस कार्बन एटम. सो इन केस ऑफ aldehyde and ketone, the reactivity of मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होती है वो कहाँ पे होती है? कार्बन पे ही होती है. ठीक है. Now this reaction, this addition consists of adding nucleophile and hydrogen across the carbon oxygen double bond. कहाँ पे एडिशन होती है न्यूक्लियोफाइल की और हाइड्रोजन की? across the carbon oxygen double bond. Okay. So now due to difference in the electronegativities of carbonyl group is polarized, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है. So this carbon atom has a partial positive charge and oxygen atom has a partial negative charge. So because of that, carbon atom become more and more electrophilic nature. Now ये कीटोन है और ये भी कीटोन है. ठीक है. अब अपने को comparatively स्टडी करना है कि which aldehyde is, whether aldehyde is greater or whether aldehyde is more reactive or whether ketone is more reactive.
जरा थोड़ा अज्यूम करो कि कौन होना चाहिए मोर रिएक्टिव, वेदर अल्डिहाइड और कीटोन। थोड़ा लॉजिक अप्लाई करके देखो स्टूडेंट्स। थोड़ा से अब जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने देखे वो सब अप्लाई करके सोचो थोड़ा, विच वन इज द मोर रिएक्टिव, कौन होना चाहिए। देखो अल्डिहाइड्स, ठीक है, मैं यहीं पे बता देती हूँ, थोड़ा ओवरलुक कर लेते। सी अल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कीटोन ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड? अल्डिहाइड के फॉर्मूले में और कीटोन के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर हाइड्रोजन, राइट। मींस ये जो यहाँ पे R ग्रुप है वहां पे अल्डिहाइड में हाइड्रोजन एटम है। सो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है ना। हाइड्रोजन एटम तो छोटू सा एटम रहता है, बहुत छोटा सा एटम रहता है, राइट। So because of that hydrogen atom and because of that alkyl atom present in a ketone, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होने वाला है कार्बोनिल ग्रुप पे। अब वो इफेक्ट क्या होता है? Now see, the reactivity of aldehyde and ketones is due to the presence of carbonyl group, which results in the electrophilicity of the carbon atom. ठीक है? Now here the aldehydes are more reactive than ketone towards the nucleophilic attack. I repeat, the aldehydes are more reactive than ketone towards nucleophilic attack. But why it is more reactive? Why aldehydes are more reactive? I see here. अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज रहते हैं ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल ग्रुप रहते हैं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल तो इसी पे अटैक करेगा ना, ये वाले कार्बोनिल ग्रुप पे, यहाँ पे ये वाले कार्बोनिल ग्रुप पे। अब मुझे बताओ सबसे इजीली न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? वेदर कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम कीटोन और वेदर कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम दिस अल्डिहाइड। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। सी, ये एक ओपन ग्राउंड है, ठीक है, पूरा खाली ग्राउंड है और वहां पे कुछ भी एक चीज रखी हुई है, कुछ भी हो जाए, पेन पेंसिल जो कुछ भी हो, या सोने का कुछ हो या कुछ भी हो, और आपको बोला जाए कि जाओ भाई वहां से ढूंढ के लाओ, ठीक है, सर्च करके लाओ, और वो चीज कहाँ पे रखी है वो आपको पहले सर्च करना, ढूंढना पड़ेगा। ओपन ग्राउंड में, ठीक है, ओपन ग्राउंड जहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली ग्राउंड है, ठीक है, तो आप जाओगे और वहां से इमीडिएट लेके आओगे। सेम चीज जो भी होगा, और सेम ग्राउंड है, पर वो ग्राउंड में बहुत सारे लोग भरे हुए, वहां बहुत सारा क्राउड है वहां पे, ठीक है, बहुत से लोग है वहां पे, और क्राउड भी बहुत सारा है, और उनके बीचों बीच या उनके कहीं तो भी वहां पे वो पड़ी होगी चीज, और वहां से बोला जाए आपको कि जाओ फिर लेके आओ। कौन सा डिफिकल्ट टास्क रहेगा, फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड वन इज द मोर डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज वहां पे क्राउड है, राइट, वहां पे लोगों का क्राउड है, और लोगों के बीचों बीच जाके, बीच में जाके उनको सरका के, उनको दूर दूर करके आपको वो चीज तक पहुंचना है, मतलब वहां पे आपको जाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, राइट, और उसको सर्च करना भी डिफिकल्ट जाएगा। और वो अगर खाली ग्राउंड में वहां पे कुछ भी नहीं है तो आप इमीडिएट देखोगे और इमीडिएट उठा के लेके आओगे, राइट। तो सेम यहाँ पे होता है, व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बन कार्बन एटम, the carbonyl carbon atom which is present in less steric hindrance, it is easily available। जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, मतलब जो क्राउड में प्रेजेंट नहीं होगा कार्बोनिल ग्रुप, वो इजीली अवेलेबल रहेगा फॉर न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है एंड हियर हाइड्रोजन एटम है, सबसे छोटा कौन है? हाइड्रोजन एटम, मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कौन क्या है? लेस है देन कीटोन, और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण क्राउड कम है, क्राउड कम है, दैट मींस ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन एटम देन कीटोन। ये हो गया एक रीजन, ठीक है। क्या हो गया? दिस कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम द अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन द कीटोन बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, और कीटोन में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, सो दैट्स व्हाई इट्स रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। नाउ दिस इज द वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन इज दैट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। नाउ इन केस ऑफ कीटोन एंड इन केस ऑफ अल्डिहाइड, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ अल्डिहाइड ओनली वन अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, और कीटोन में टू अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट।
These alkyl groups shows the plus I effect. ये तो सब लोगों को पता होगा. अल्काइल ग्रुप्स क्या शो करते हैं? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्लस आई इफेक्ट, और जो रहता है जो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? कार्बन कार्बन एटम को. इनको डायरेक्ट अटैच है, कार्बन ग्रुप को अटैच है ना, कार्बन कार्बन एटम को अटैच है ना. मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अल्काइल ग्रुप की तरफ कार्बन एटम की तरफ जा रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स अल्काइल ग्रुप की तरफ कार्बन एटम की तरफ जा रहे हैं. तो कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, और इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं फ्रॉम अल्काइल ग्रुप, तो उसका पॉजिटिविटी कम हो जाएगा ना, क्योंकि टू अल्काइल ग्रुप्स provides the electron towards these carbon carbon atoms, so the positive character of this carbon carbon atom is decreases. ठीक है, यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, एक साइड में तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन तो कुछ शो नहीं करता है, प्लस आई इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं. अल्काइल ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, कार्बन ग्रुप को इलेक्ट्रॉन शो प्रोवाइड करेगा, बट एक ही अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड करेगा. so, इसका भी पॉजिटिव कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा, बट सबसे कम किसका होगा? कार्बन कार्बन एटम फ्रॉम कीटोन. और इससे इस कार्बन कार्बन एटम अल्डिहाइड का पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा रहेगा देन कीटोन. और पॉजिटिव कैरेक्टर जिसका ज्यादा, उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा जरूरत रहेगी, और उसी पे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा. ओके, so due to electronic effect also, or due to plus I effect of alkyl group, we can say that aldehydes are more reactive than ketone, because of aldehydes are more electrophilic in nature than ketone. Okay, so aldehydes are less hinder than the ketone, and hydrogen atom is smaller than any other atom. Similarly, the carbon carbon atom in aldehyde generally has more partial positive charge than in ketone due to electron donating nature of alkyl groups. Aldehydes only have one electron donor group, while ketones have two. Understood? So these two effects decides the reactivity of aldehydes and ketones. Which of those? Plus I effect and plus I effect and plus I effect of alkyl groups and steric index. That means steric effect. Okay, so this is the physical properties of aldehydes and ketones. Now the next topic is chemical reactions of aldehydes and ketone. Chemical reactions अभी हम लोग स्टडी करेंगे. तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि which one is the more reactive? Aldehyde and ketones are more. Aldehydes are more reactive than ketone because of the कार्बन एटम का प्लस कार्बन जितना पॉजिटिवली चार्ज रहेगा उतना न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा. दैट मींस वी कैन से दैट यहाँ पे जो रिएक्टिविटी रहेगी वो कार्बोनिल ग्रुप पे रहेगी, कार्बोनिल कार्बन पे रहेगी. तो अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन में स्टडी करने वाले कौन से ग्रुप की स्टडी करेंगे? रिएक्टिविटी कार्बोनिल कार्बन एटम की स्टडी करेंगे. ठीक है, so before that some laboratory test of aldehydes and ketones है. So see, aldehydes and ketones, aldehydes are easily oxidized to the carboxylic acid. अब ये तो सबको पता है ना कि aldehyde जब अगर aldehyde का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अपने को प्रोडक्ट मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो इटसेल्फ क्या एक्ट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट. So aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid, hence it acts as a reducing agent towards the mild oxidizing agents. But इसके exact उल्टा है, ketones do not have hydrogen atom directly attached to a carbon atom, hence they are not oxidized by mild oxidizing agent. Okay, so oxidized नहीं होंगे. So on the basis of this difference in the reactivity of aldehydes and ketones, these two aldehydes and ketones are distinguished by different methods, by different tests. ठीक है, जो टेस्ट लेबोरेटरी में होते हैं वो on the basis of that reactivity of aldehydes and ketones we can do the result. Now aldehydes easily oxidizable होता है because of hydrogen atom directly attached to the carbon atom, और ketones oxidizable नहीं होते. Now the first test is Kipps test, और उसी को हम लोग बोलते हैं चिप्स टेस्ट. ठीक है, चिप्स टेस्ट. So चिप्स रिएजेंट है, वन ऑफ द रिएजेंट है.
ठीक है, वो रिएजेंट कौन है? नाउ व्हेन द अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चिप्स रिएजेंट, अ पिंक और रेड और मैजेंटा कलर अपीयर। अगर कोई सॉल्यूशन में अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ एल्डिहाइड लेना है और वहां पे अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा एंड इफ वी एडेड चिप्स रिएजेंट इन दैट सॉल्यूशन, देन वी गेट रेड, pink or magenta color. So on the basis of that appearance, we can confirm the presence of aldehydic group. अगर रेड या पिंक कलर नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे कि अल्डिहाइड अब्सेंट है। अभी हम लोगों ने देखा है ना कि ये टेस्ट कौन देता है, ओनली अल्डिहाइड्स देता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरी क्लियर टेस्ट हुए कार्बन विद कार्बन एटम, सो बिकॉज ऑफ दैट इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग वही टेस्ट कर रहे हैं, मतलब एज यू कैन सी हियर इसकी चिप्स से कौन देता है, अल्डिहाइड गिव्स मैजेंटा कलर, और कीटोन के साथ ये टेस्ट प्रोसीड ही नहीं होगी। जो कलर रहेगा पिंक कलर रहेगा अपने सॉल्यूशन का, चिप्स रिएजेंट का, इट रिमेन पिंक। एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, देखो यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स लिए, वन इज एसीटोन, सेकंड वन इज एसिटाल्डिहाइड एंड थर्ड वन इज फॉर्मल्डिहाइड। तो उन्होंने क्या बोला है कि इफ pink color or red color or magenta color appear, that means we can say that the given solution contain aldehyde. So acetone के इसमें देखो acetaldehyde के इसमें यहाँ पे magenta color तैयार हुआ है, here dark pink color तैयार हुआ है जिसे कैमरा पर का रहता है, और जो acetone का कलर है वो light pink है, और ये कलर रहता है चिप्स रिएजेंट का। चिप्स रिएजेंट का यही कलर रहता है, इसलिए वो सॉल्यूशन में डाला तो पिंक दिख ही रहा है, बट इसके और इसमें चेंजेस है, दैट मीन्स acetaldehyde and formaldehyde gives only this test, मतलब only aldehyde gives this test, ketone ये टेस्ट नहीं देता है। okay, this is called as the chips test. Now the second test is Tolles reagent test. इसके लिए identification और distinguish test for aldehyde and ketone. Second test is Tolles reagent test. Now here टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में क्या होता है, व्हेन एन एल्डिहाइड इज बॉइल्ड विद द टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट मतलब क्या रहता है, अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, मतलब अमोनिया के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज द टॉलेंस रिएजेंट। व्हेनेवर इट इज रिएक्ट्स विद द एल्डिहाइड इट फॉर्म ए सिल्वर मिरर, इट फॉर्म ए सिल्वर मिरर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन में दिस aldehyde molecule oxidize हो जाएगा and Tollens reagent oxidize to carboxylate anion by Tollens reagent, और Ag का रिडक्शन होगी Ag+ से वो Ag में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा, दिस कार्बोनिल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस Ag इज रिड्यूस्ड, फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोक्सिलेट एनायन विद Ag, और ये जो Ag वो तैयार हो रहा है यहाँ पे, इट गिव्स द सिल्वर मिरर, और वो ऐसे मिरर के जैसे दिखता है। आप अगर वो टेस्ट करते हो और वो अल्डिहाइड प्रेजेंट है तो सिल्वर मिरर जैसे तैयार होता है, आपका चेहरा उसमें दिख सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सिल्वर मिरर। अब ये सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, या टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है, जैसे चिप्स टेस्ट अल्डिहाइड दे रहा था, यहाँ पे भी अल्डिहाइड ही सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है बिकॉज ऑफ नो हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो स्लाइड में दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज ये सिल्वर मिरर है, मतलब एक जैसे तैयार होता है सिल्वर, ये चमकता है, और यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल रखा है, वो आर पार दिख रहा है, मतलब अगर आप भी अपना फेस देखोगे तो आपको भी मिरर के जैसे ही वहां पे आपका फेस क्लियर दिखेगा। सो सी यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब किसकी है, एसिटाल्डिहाइड की, यहाँ पे सिल्वर मिरर तैयार हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड में भी सिल्वर मिरर तैयार हो चुका है, बट एसीटोन में सिल्वर मिरर नहीं, कुछ भी नहीं है, कलरलेस सॉल्यूशन इज देयर, दैट मींस नो रिएक्टिविटी, दैट मींस कीटोन्स डजंट गिव दिस रिएक्शन, ओके। सो सिल्वर मिरर टेस्ट भी कौन देता है, ओनली अल्डिहाइड्स। नेक्स्ट टेस्ट इज द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट अब क्या होती है, now when a mixture of aldehyde and Fehling solution is boiled with hot water, Fehling solution का मिक्सचर लेना है और अपना aldehyde का solution लेना है, when the red precipitate is obtained then we can say the given compound contain aldehyde। अगर red precipitate तैयार होता है cuprous oxide का रहता है red precipitate, then we can say the given substance or given compound must contain aldehyde। so see here फेलिंग सॉल्यूशन रहता है कॉपर सल्फेट का विद टार्टरिक एसिड, तो ये ब्लू कलर का इटसेल्फ रहता है, ठीक है,
और जैसे वहाँ पे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगी इट गिव्स अ रेड कलर, ब्रिक्स रेड कलर जला आपण म्हणतो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेशन जैसे होता है देन वी गेट ब्रिक्स रेड कलर. See the reaction here. Aldehyde reacts with Cu2 positive with OH minus and that is called as the Fehling solution. Cuprous oxide का ये जो solution रहेगा that is called as the Fehling solution. वो उसको boil करना है. Aldehyde is converted into a acid carboxylate anion and Cu is converted into a Cu2O जो कि red precipitate देता है with water. So red precipitate जैसे Cu2O तैयार होगा we get a red precipitate and due to this we can see that presence of aldehyde. So see here acetone, aldehyde and formaldehyde. तो यहाँ पे only acetaldehyde gives this taste. ठीक है, acetaldehyde ही ये टेस्ट देता है which gives a brisk red color. बाकी के blue as it is है, दोनों ने ये reaction नहीं दी है. ठीक है, this is the third test which is used for the detection of or for the identification of aldehyde. Or we can say for the differentiation of or distinguish test for aldehydes and ketones. Are you getting my point? So these three tests. First one is Gibbs test, second one is tolerance reagent test, and third one is Fehling solution test. Okay. Now see here. Now the next topic is केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अब यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, सो कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर पोलराइज्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. अब ये हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स यही देखते आ रहे कि कार्बोनिल ग्रुप क्या है मोर एंड मोर पोलर है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम. इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे हैं सो कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज हो रहे हैं, ऑक्सीजन एटम नेगेटिवली चार्ज हो रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना इजीली न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करेगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा. ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, और कार्बन एटम पे कौन अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल. Now the first nucleophilic reaction is nucleophilic addition of hydrogen cyanide. First reaction कौन सी है nucleophilic addition of hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide is nothing but a HCN. Now HCN is a weak acid. Okay, HCN is a weak acid which added across the carbon oxygen double bond in aldehyde and ketone forms a compound called as cyanohydrine. क्या तैयार करता है cyanohydrine. Okay, अब कैसे रिएक्शन होगी नाउ सी हियर. ये कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे जाएगा H न्यूक्लियोफिलिक और यहाँ पे जाएगा Cn. सो फॉर्मेशन ऑफ दिस ये यहाँ पे जाएगा और हाइड्रोजन इधर. सो फॉर्मेशन ऑफ दिस RCOH RCN and the compound is called as cyanohydrine compound. Take one example acetaldehyde or we can say ethanol. त्यालाच आपण म्हणतो ethanol or we can say acetaldehyde. तो ऊपर की रिएक्शन देखिए नीचे की लिखना है. ये Cn ग्रुप कहाँ पे अटैक करेगा कार्बन एटम पे, ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन इज नॉट पॉसिबल, तो ये हाइड्रोजन खा लेगा. फॉर्मेशन ऑफ OH विद Cn. सो ओनली टू ही चेंजेस आ रहे हैं, ये ग्रुप अटैच करना है और ये ग्रुप अटैच करना है. So what is this? This is nothing but a aldehydic cyanohydrine. But the name of this compound कैसे लिखोगे? Now see, इसको हम लोग नंबरिंग देंगे यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड. सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट इज 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप. ठीक है, और ये कार्बन एटम कितने हैं एक चेन में 3 कार्बन एटम इंक्लूडिंग साइनाइड ग्रुप का कार्बन एटम. और साइनाइड ग्रुप का आयोजन नोमेनक्लेचर लिखते समय हम लोग लिखते हैं प्रोपेन लिखते हैं नाइट्राइल. So 3 कार्बन एटम है यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में, so that's why it is propane nitride. So the name of this compound is 2-hydroxypropane nitride. Understood? Take one example, that means acetone. Here acetone reacts with HCN. Similarly, it gives acetone cyanohydride and its IUPAC nomenclature is 2-hydroxy 2-methyl nitride. Simple. This is also the same reaction. यहाँ पे भी वही होगा. This Cn यहाँ पे अटैच हो जाएगा
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते जैसे, तो ये हाइड्रोजन खा लेगा। वी गेट दिस CH3 CH3 Cn एंड OH। यहाँ पे नंबरिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। सो द नेम इज 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल मीन्स 3 कार्बन एटम, प्रोपेन नाइट्राइल। Understood? So this is the nucleophilic attack of HCl, that is hydrogen cyanide, on carbonyl carbon atom from aldehydes and ketones. Second is nucleophilic addition of sodium bisulfide. Nucleophilic addition of sodium bisulfide. What is the formula of sodium bisulfide? NaHSO3. What is the formula of sodium bisulfide? NaHSO3. Whenever sodium bisulfide is shaken with aldehydes and ketones, okay, aldehydes and ketones, then we get carbonyl bisulfide or the colorless liquid. This reaction takes place in more readily with aldehydes than ketone. The nucleophile is the hydrogen sulfide ion, that means HSO3. So see here. Here NaHSO3 इसमें से ये जो रहेगा इस पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन एटम बिकम OH सिंपली। तो OSO2 Na पॉजिटिव विथ OH gives bisulfide salt। क्या तैयार हो रहा है यहाँ पे? यहाँ से अपने को मिलेगा अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हो आप, Na that means sodium O negative S डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, अब ये जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन इसकी तरफ चला जाएगा और बचा कौन? फिर इतना मॉलिक्यूल बचा है ना, तो OSO2 Na right there. So this is called as the bisulfide salt. That is called as bisulfide salt. Whenever aldehydes or ketone reacts with sodium bisulfide, then we get bisulfide salt. So see acetone, if we use the acetone reacts with NaHSO3, we get this acetone sodium bisulfide add up or salt. Okay, so this is the second nucleophilic addition reaction of aldehydes and ketones. Now the third one is addition of alcohol. Now this is very important reaction. Number of times exam में आई हुई. Okay, so addition of alcohol. Now whenever a aldehyde reacts with one molecule of alcohol, anhydrous monohydric alcohol in presence of dry HCl, क्या तैयार होगा? It gives alkoxy alcohol. ये क्या तैयार करता है? Alkoxy alcohol, which is called as hemiacetal. ठीक है, अब hemiacetal मतलब half acetal ग्रुप तैयार होगा वहां पे, which on further reaction with second molecule of alcohol, then we get acetal. That is called as the geminal dialkoxy compound अपने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं acetal. See the reaction. This is the first molecule of aldehyde reacts with alcohol. First molecule, sorry, aldehyde reacts with first molecule of alcohol in presence of dry HCl and dry HCl और dilute HCl. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे across the डबल बॉन्ड एडिशन होगी, न्यूक्लियोफाइल कार्बन ग्रुप पे और ऑक्सीजन का OH बन जाएगा. सो सी हियर क्या होगा? सो क्या होगा यहाँ पे? दिस अल्काइल ग्रुप हियर ये OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये अल्काइल ग्रुप ये ऑक्सीजन के पास. So what we get? This R, H, COH and OR, that is called as the heavy acetal, जो कि unstable रहता है, which cannot remove this or we cannot be stored in a bottle. In second step, this hemiacetal reacts with the second molecule of alcohol. Second molecule of alcohol के साथ जब इसकी reaction होगी, यहाँ पे देखो क्या होता है? We get this mole of this OH
और ये OH निकल जाके उसके जगह पे अपने को मिलता है OR, ठीक है, विथ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट मिलता है वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेमी एसिटल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे you have to add this R group over this oxygen atom और ये OH group यहाँ पे अटैच करना है और डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज द हेमी एसिटल। Second, जब whenever second molecule of alcohol is reacts with that hemi acetal, remove this OH और उसके जगह पे ये OR लगा दो और ये OH और ये H प्लस H2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट। इतना ही ये रिएक्शन में होता है। नाउ सी एग्जांपल हियर, दिस इज द जनरल रिएक्शन। ऑफ एग्जांपल देखो, दिस इज एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद इथेनॉल, क्या होगा, दिस इज एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। क्या करना है आपको, ये इथेनॉल का C2H5 वहां पे लगाना है और ये OH कार्बन कार्बन को अटैच करना है, ठीक है, हो गया, मिल गया हेमी एसिटल। नाउ दिस हेमी एसिटल रिएक्ट्स विद सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, दैट मींस C2H5 OH। यहाँ पे चाहिए C2H5, R की जगह पे C2H5। यू हैव टू रिमूव दिस OH और उसके जगह पे आपको लगाना है, या सिंपली रिमूव द हाइड्रोजन एटम, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, आपको ध्यान में रखने के लिए। ये हाइड्रोजन को निकाल लो यहाँ से और उसके जगह पे ये C2H5 लगा दो, जो R ग्रुप रहेगा, C2H5 लगा दो और ये H और ये OH वाटर के फॉर्म में बाहर निकाल दो, दैट्स इट। दिस इज द reaction of acetaldehyde with ethanol, so you get this 1,1-diethoxyethane, उसी को हम लोग बोलते हैं 1,1-diethoxyethane। How it is called as the 1,1-diethoxyethane? Now see here, this is CH3 and carbon atom, मतलब अगर नंबरिंग देना है कार्बन को तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज सेकंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे ही दो इथॉक्सी ग्रुप लगे, सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज 1,1-डाइथॉक्सी। और पेरेंट अल्केन, दो मेंबर का अल्केन इथेन, सो दैट इज कॉल्ड एज द 1,1-डाइथॉक्सी इथेन। और उसके हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। जेमिनल मतलब कि जो भी अल्कोक्सी कंपाउंड है वो प्रेजेंट है सेम कार्बन एटम पे, दैट इज कॉल्ड एज जेमिनल डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। सो यहाँ पे भी हम लोग सेम दिख रहे, देखो मैकेनिज्म स्टडी करते हैं अभी इसका। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, सी द मैकेनिज्म। फर्स्टली दिस इज अपना अल्डिहाइड मॉलिक्यूल, हियर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिड रिएक्शन प्रोसीड हो रही है ना, दैट मींस इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन एसिडिक मीडियम। तो ये जो कार्बन का ऑक्सीजन एटम है, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेते हैं, क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेता है, तो वो बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन बनेगा पॉजिटिव चार्ज, राइट, और ये H+ यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन को खा लेगा, देन इट बिकम COH, बट कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज बन गया है ना। सो देन आती है एंट्री अपने हीरो की, दैट मींस अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल में OH ग्रुप में ऑक्सीजन एटम है जिसके पास दो दो लोन पेयर है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे इजीली अटैक कर सकता है, राइट, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे ये न्यूक्लियोफाइलिक अटैक कर सकते हैं, तो वी गेट दिस कंपाउंड। बाकी RH एज इट इज है, ये ऑक्सीजन बन गया OH और यहाँ पे अटैच होंगे O, एक जगह पे R है, एक यहाँ पे H। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 वैलेंसी सेटिस्फाई की है, 3 वैलेंसी फॉर्म करी, मतलब ऑक्सीजन एटम बिकम अनस्टेबल, अनस्टेबल ऑक्सीजन एटम। अब उसको क्या करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये कार्बन वाला या इथाइल ग्रुप वाला या हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन वाला इजी जाएगा ब्रेक करना क्योंकि हाइड्रोजन छोटा है और वो इलेक्ट्रॉन देख के जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन देखे, दैट मींस इन द फॉर्म ऑफ H+, यहाँ पे दिख रहा है -H+। अब क्या बचा है यहाँ पे, ये R ग्रुप, ये H ग्रुप, बाकी ये OR और ये OH होगी हेमी एसिटल। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप। नाउ ये जो H+ यहाँ से बाहर निकला है ना, ये ऑक्सीजन की उसी पे नजर है, ये जो OH है ना उसी पे नजर है कि उसको कब मैं खा लेता हूँ, तो ये ऑक्सीजन पे, ये हाइड्रोजन पे वो अटैक कर लेता है एंड देन वी गेट दिस स्पीशीज OH। फिर से ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी नॉट पॉसिबल, इस पे अटैक पॉजिटिव चार्ज। अब वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, कौन सा स्टेबल मॉलिक्यूल, अपना पानी, पानी मींस वाटर, HOH,
तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन के पास के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड का। तो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। फिर से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ऑक्सीजन, दैट मींस कार्बन बिकम अगेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, परत कार्बन वरती फिर से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाउ सेकंड मॉलिक्यूल की अब एंट्री होगी, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल की। देन सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल अगेन अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, वी गेट दिस स्पीशीज। नाउ हियर ये वाला ऑक्सीजन, ये H और ये R, फिर से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और माइनस H प्लस बाहर निकल जाएगा एंड वी गेट दिस एसिटल स्पीशीज। ये माइनस H प्लस जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज किया था उसको बाहर निकालना ही पड़ता है। ठीक है, so we get this acetal as a stable molecule. This is the mechanism of this addition of alcohol. ओके कुछ नहीं है, पहले इसमें ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वो OH के साथ बॉन्ड फॉर्म, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, फिर अल्कोहल अटैक करता है बिकॉज कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब फिर पहले स्टेप में हेमी एसिटल तैयार होगा, सेकंड स्टेप में एसिटल तैयार होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द एडिशन ऑफ अल्कोहल विद aldehydes and ketones। सेम रिएक्शन कीटोन के साथ होती है, सेम रिएक्शन aldehyde के साथ। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगेन ketones are also reacts with alcohol in presence of acid catalyst, use hemiketal and ketal। ठीक है, ketones भी reacts होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। Ketones reacts with 1,2 or 1,3 diol in presence of dry HCl, use 5 or 6 member cyclic ketal। Now see here, this is the ketone। Okay, ketone reacts with glycol, ethane 1,2 diol, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोल। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे ध्यान में रखने के लिए सिंपली आप क्या ध्यान में रखो, ये ऑक्सीजन एटम और these two हाइड्रोजन एटम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे in the form of water molecule, और ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ एक एक वैलेंसी मिक्स हो जाएगी या सेटिस्फाई हो जाएगी एंड वी गेट दिस साइक्लिक केटल स्ट्रक्चर। क्या मिला अपने को, साइक्लिक केटल। क्या करना है यहाँ पे, सिंपली ये ऑक्सीजन एटम एंड दिस टू हाइड्रोजन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ H2O रिमूव करना है एंड ये जो डबल बॉन्ड की वैलेंसीज है एक एक ऑक्सीजन के साथ वहां पे सेटिस्फाई करना है। दैट्स इट। सो दिस इज द addition of, this is called as the addition of alcohol with ketone। Understood? So this is the addition of alcohol with aldehydes and ketone। In first step hemiacetal formation takes place and in second step acetal formation takes place। So this is the nucleophilic addition reaction of alcohol। Again nucleophilic addition of Grignard reagent, then the nucleophilic addition reaction of अमोनिया डेरिवेटिव्स, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है एल्डिहाइड्स और कीटोन में एंड ऑल दीस रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक रिएक्शन एग्जाम में तो आती है और एक नहीं एक से ज्यादा रिएक्शन एग्जाम में आती है और ज्यादा मार्क्स के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, सो इसको मार्क्स भी वेटेज बहुत ज्यादा है। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the addition reaction for Grignard reagent, then the addition reaction, nucleophilic addition reaction of ammonia derivatives, aldol condensation, Cannizzaro reaction, Wolff-Kishner reaction, reduction reaction, Clemmensen reduction reaction। ये अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Okay students, so see you soon। Okay students, so till then do the study well। Bye students।